Over 200 cases of the Omicron variant have been reported in India till date. Out of the 200 cases, it is said that 77 have already been recovered. The Omicron variant has spread to over 60 countries in just a month's time, which tells us how transmissible this variant is. The Omicron variant was first discovered in South Africa and has been considered as a variant of concern by the World Health Organization. In the latest, the WHO has also claimed that the Omicron variant is spreading faster than the Delta variant and is even affecting the vaccinated ones. Today, let's take a look if we should actually be scared of the Omicron variant. The variant is still a matter of research for the scientists and experts across the globe. Studies till now reveal that the Omicron variant is much more transmissible than the Delta variant, which wreaked havoc in several countries across the globe and which even caused a deadly COVID-19 wave in India. Now, it remains to be seen if the Omicron variant will surpass the Delta variant in terms of severity. Only extensive research about the same can tell us more about it. So here's what we know so far. The Omicron variant has 30 mutations in its spike protein and are different than the variants discovered till now. Another thing which we know is that the Delta variant has only 2 mutations, but the Omicron variant has 32 mutations, which tells us how extremely transmissible this variant is. The new findings by the Imperial College of London reveals that the risk of infection of the Omicron variant is 5 times higher than the Delta variant. The study also reveals that the COVID vaccination gives 20% protection from the Omicron variant. Meanwhile, the third dose or the booster dose of a COVID-19 vaccine can increase its efficacy from 55 to 80% for the symptomatic patients. Now, another thing which is to be noted over here is that the deaths caused by the Omicron variant is comparatively lesser than the Delta variant. The United Kingdom has till now recorded only 12 deaths due to the Omicron variant. To know more about the Omicron variant and the vaccine efficacy, Dr. Uday Bodhankar joins us for more. सबको मालूम है ओमिक्रॉन वेरिएंट जो 24 नवंबर को पहले डिक्लेयर हुआ था साउथ अफ्रीका में। तो जब वो डिक्लेयर हुआ था तब वो वायरस का स्टडी किया गया WHO ने, ICMR ने। तो स्टडी में ऐसा पाया गया कि अभी आप समझिए कि वायरस जो रहता है ऐसा गोल रहता है, डब्बे ये ऐसा गोल रहता है, उसके ऊपर कंगोरे रहते हैं। वो कंगोरे नॉर्मल रहते हो, नॉर्मल माइक्रॉन था, कोरोना था। बाद में वो कंगोरे के ऊपर म्यूटेशन हो गया, चेंज हो गया 2 से 3, तो उसको बोलते हैं डेल्टा वेरिएंट। और वही कंगोरे के ऊपर 30-32 टाइम चेंज हो गया कंगोरे, तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है, उसको बोलते हैं ओमाइक्रॉन। तो अभी ऐसा पाया गया है कि इसके जो कंगोरे, ये स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, उसके ऊपर इतने ज़्यादा चेंजेस हुए। चेंजेस क्यों है? क्योंकि वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड नहीं है। आपको ताज्जुब होगा, साउथ अफ्रीका में टोटल पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड नॉट मोर देन 7%। या वेरी अनफॉर्चुनेटली पहला डोज और दूसरा डोज लिया पॉपुलेशन इज नॉट मोर देन 20-30%। तो 2 डोज लिए हुए पॉपुलेशन इज नॉट मोर देन 7-8%। तो इसलिए वायरस क्या रहता है कि आदमी दिख गया अनवैक्सीनेटेड है तो उसके ऊपर अटैक करता, चेंज करता अपने को। जैसा कामोफ्लेज, जैसा आर्मी आता, दुश्मन आता, दुश्मन क्या देता कि ये आदमी सोया है, ये तो उसके ऊपर अटैक करता है। देखो अपने यहाँ के अटैक जो भी रात में हुए, सवेरे जो भी होते हैं दुश्मन के, तो वहाँ पर ऐसा वेरिएंट उसका चेंज हुआ। और बाद में ऐसा देखा जितने आप चेंजेस लाते हैं स्पाइक प्रोटीन पे उतना डेंजर रहता। सिर्फ 3 चेंजेस है, डेल्टा वेरिएंट इतना खतरनाक था कि अपने कितने लोग मरे। अभी 32 चेंजेस हुआ, ये अब ले लेंगे तो कितना खतरनाक रहेगा। एबिलिटी जो होता है कि यदि मेरे को कोरोना हुआ तो मैं कितने लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी। वो नॉर्मल कोरोना में 2-4 लोगों को था, डेल्टा में 7-8 लोगों का, तो उसको बोलते हैं आर वैल्यू बोलते हैं। तो डेल्टा में आर वैल्यू हुआ 1.28 टाइम, यानी इस तरह इसमें 1.98 है। तो इसमें यदि कोरोना हो गया तो उसके कारण कम से कम 10, 15, 20, 25 लोगों को मैं अफेक्ट कर, ये उल्टा ट्रांसमिसिबिलिटी। तो 3 चीज़ें गए, एक तो डेंजरस है, ट्रांसमिसिबिलिटी फास्ट है, और इम्यून एस्केप है, जिसको लिया है वैक्सीन, जिसको नहीं उसको भी अटैक करेगा। लेकिन इसमें एक ही अच्छी बात है कि जब अब तक देखो एक ही ब्रिटेन में कल एक पेशेंट मर गया 25 दिन में, 60 देश में। तो मैं बोलूँगा एक अच्छी चीज़ ये है कि ये इसका जो भी हमारा डिस्कशन हुआ तो इनमें सिम्टम प्रेजेंटेशन माइल्ड है,
डेल्टा में कैसे माइल्ड मॉडरेट सीवियर थे, बच्चे में सीवियर होता था और बड़ों में सीवियर होके उसमें दगा होता था, यानी वो मरते थे। इसमें ऐसा देख रहे हैं माइल्ड सिम्टम होते हैं, सिम्टम में अभी जो फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, बाद में लूज मोशन, वोमिटिंग हुई रहता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो पाएंगे वो आदमियों में थकते बहुत है, टायर्डनेस। जैसा मेरे को ओमिक्रॉन हुआ तो मैं टायर्ड होऊंगा, सुस्त होऊंगा 1-2 दिन तक, और कल फिर से और एक है कि पसीना बहुत आएगा, इवन ठंडी में भी पसीना आना, टायर्डनेस, और तीसरा अभी बच्चे में रैश यानी पुरल बोलते हैं वो आई। ये 3 चीज़ें नहीं आई। तो इसके अलावा इसमें ऐसा पाया गया कि माइल्ड डिसीज होता है, सीवियर नहीं होता। ऑक्सीजन लेवल जो अपने डेल्टा में कैसा पट नीचे आता था 90 to 98, इसमें ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा, ज़्यादा कम नहीं हो रहा। तीसरा, इसमें के मैक्सिमम पेशेंट वो घर में ट्रीटमेंट किया, जैसा 98%, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं रही, और ऑक्सीजन हॉस्पिटल एडमिशन हार्डली 1% था, और डेथ भी हार्डली नील बोलूँगा। तो ये अच्छी चीज़ है। थैंक यू।